ٹائمز میں خوش آمدید۔ عرب دیشوں پر ایران کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح ایران ابھی عرب دیشوں پر حملے کر رہا ہے اور اب عرب دیشوں میں عوام کی ہلاکت ہونے لگی ہے، اس سے لگتا ہے کہ عرب دیش اور ایران کے درمیان بھی ایک نیا تنازع شروع ہو سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک عرب دیشوں نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، ایران پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لگاتار سعودی عربیہ پر، UAE پر، قطر پر امریکہ کا پریشر ہے، اسرائیل کا پریشر ہے، دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی جو ایجنسی ہے وہ کام بھی کر رہی ہے ان عرب دیشوں میں کہ کسی طرح یہ ممالک بھی ایران پر حملہ کرنا شروع کر دیں، لیکن ابھی تک عقل مندی کا فیصلہ کر رکھا ہے ان عرب دیشوں نے۔ لیکن جس طرح ایران ان عرب دیشوں پر حملے کر رہا ہے اور وہاں اب سویلین کی ہلاکت ہونے لگی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ ایران کے ایک حملے میں سعودی عرب میں 12 لوگ زخمی ہو گئے ہیں، 2 کی موت ہو گئی ہے، اور مرنے والوں میں ایک انڈین شہری شامل ہے، دوسرا بنگلہ دیشی شہری شامل ہے، اور یہ ایک ریزیڈنشل بلڈنگ پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں اتنا بڑا نقصان ہوا۔ ریاض سے 127 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک علاقہ ہے، وہاں یہ حملہ ہوا، اس کو سینٹرل سعودی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے حملے میں یہ ہوا۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی ایران کے حملے میں 4 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 2 پاکستانی شہری ہے، ایک نیپالی، ایک بنگلہ دیشی۔ کویت میں بھی کچھ شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، بحرین میں بھی کچھ کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو جس طرح ان عرب دیشوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ان عرب دیشوں کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ابھی تک ان عرب دیشوں نے آفیشیلی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں اسرائیل کی میڈیا نے اس طرح کی خبر شائع کر دی کہ UAE ایران پر حملہ کرنا شروع کر چکا ہے، اور UAE مڈل ایسٹ کا پہلا ملک بن چکا ہے ایران پر جوابی کارروائی کرنے والا۔ لیکن اس کے بعد ایران کی وزارت دفاع کی طرف سے باضابطہ جواب آتا ہے، بیان آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے کا حق اور رائٹ محفوظ رکھتے ہیں، ہم ایران کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ایران پر حملہ نہیں کیا ہے اور ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ UAE کا آفیشیل فیصلہ ہے۔ سعودی عرب کا بھی تازہ موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ سعودی عرب کے MBS محمد بن سلمان کی پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات ہو چکی ہے۔ ادھر UAE کی طرف سے آج ایک ڈیٹا جاری کر کے بتایا گیا کہ اب تک ایران نے ان پر کتنا حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیٹا سامنے آیا جس میں بتایا گیا کہ ایران نے اب تک، یعنی 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایئر اسٹرائک کا آغاز کر دیا، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد جب ایران نے اپنی جوابی کارروائی شروع کی، تو پچھلے 10 دنوں کی لڑائی میں ایران نے اسرائیل سے زیادہ UAE پر حملہ کیا ہے، دوسرے دیشوں پر حملہ کیا ہے، اور پوری تفصیل سامنے آئی ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی میں، ایران کے جوابی حملے میں 42% حملہ ہوا ہے متحدہ عرب امارات پر، اور 20% حملہ ہوا ہے اسرائیل پر، 16% حملہ ہوا ہے کویت پر، 6% حملہ ہوا ہے بحرین پر، 5% حملہ ہوا ہے سعودی عربیہ پر، 2% حملہ ہوا ہے جورڈن پر، 2% حملہ ہوا ہے قطر پر، اسی طرح 2% حملہ ہوا ہے عراق پر، اور 0.4% حملہ ہوا ہے عمان پر، 0.4% حملہ ہوا ہے سائپرس پر، اور 0.1% حملہ ہوا ہے آذربائیجان پر، اور 0% حملہ ہوا ہے ترکی پر۔ یہ ایک ڈیٹا سامنے آیا ہے، اسکرین پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، حالانکہ یہ 1 دن پہلے کا ڈیٹا ہے، اور اب تعداد مزید بڑھ چکی ہے۔ اور UAE کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایران نے سب سے زیادہ ہم پر حملہ کیا ہے۔ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ UAE کے جو اونچے اونچے ٹاور ہے اس پر جا کر کے کبھی ڈرون گرتا ہے، برج العرب پر جا کر کے ڈرون گرتا ہے، اس کے علاوہ برج الخلیفہ کے نزدیک جا کر کے ایک ڈرون گرا تھا، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جا کر میزائل گرا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انڈیا کے کچھ لوگ لوٹ کر آئے ہیں، وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے، انڈیا آنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میزائل آتا ہے، گرتا ہے، اور ابھی تک وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ حالانکہ ایران نے ان ملکوں پر جو حملہ کیا ہے وہ یہاں کے فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے، امریکی ایسٹس کو نقصان پہنچایا ہے، اور ایران کو بالکل سٹیک جانکاری مل گئی تھی، ایگزیکٹ انفارمیشن مل گئی تھی کہ کہاں کہاں امریکی آرمی رہتی ہے، کس ہوٹل میں امریکی کمانڈر ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں کہاں CIA کے ایجنٹ رکے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹ
इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाने की वजह से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से या ड्रोन से इन सब को निशाना बनाया। इधर मिडिल ईस्ट के इन देशों की तरफ से यूएई, कतर और अरब ममालिक की तरफ से लगातार अमेरिका पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका इस जंग को बंद करने की कोशिश करे, सीज फायर करे, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग में मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिडिल ईस्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया है, यूएई का सबसे ज़्यादा खसारा हो रहा है और अमेरिका अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका का लबो लहजा ज़रा सा ज़रूर बदला है, लेकिन इसको मुकम्मल लबो लहजा का बदलना आप नहीं कह सकते हैं। इस बीच फ्रांस के सदर मैक्रोन ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की है और उनसे कहा है कि ईरान को पड़ोसी देशों पर हमला बंद कर देना चाहिए। रीजन में जो ममालिक है उस पर ईरान का हमला बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये था कि ईरान का हमला फ़ौजी अड्डों पर हो रहा है, ठीक है, लेकिन फ़ौजी अड्डों पर होने वाले इन हमलों में इन देशों के एसेट को भी नुकसान पहुंच रहा है और यहाँ हलाकत हो रही है। और इन देशों में इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और दुनिया भर के शहरी रहते हैं जो वहाँ बिजनेस के लिए गए हुए हैं, रोज़गार के लिए गए हुए हैं, और उनकी अगर हलाकत होगी तो इसका असर इन देशों पर भी पड़ेगा। इधर से भी ताल्लुकात ख़राब होंगे तो ईरान पर भी अब प्रेशर बढ़ने लगा है, दबाव बढ़ने लगा है। अरब देशों ने अभी तक ईरान पर हमला करने का फ़ैसला नहीं किया है। यूएई ने भी हमला करने से इनकार कर दिया है। ये एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ईरान को भी बहुत सोच समझ कर इन देशों पर हमला करना होगा, लोकेशन सही से टारगेट करना होगा। अगर अमरीकी फ़ौजी अड्डे के अलावा किसी और बिल्डिंग पर जाकर मिसाइल गिरता है या वहां जाकर ड्रोन गिरता है तो ईरान को उससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर इन मुल्कों में हमलों के होने का या टारगेट के हिट होने की एक वजह यह भी है कि इन देशों में जो अमरीकी ठाड़ था, जो अमेरिका का रडार था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको ईरान ने तबाह कर दिया है। और अब ईरान यहाँ हमले कर रहा है तो वहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम सही तरीके से रोक नहीं पा रहा है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को जाकर वो हिट कर रहा है या आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। और इसी वजह से अरब देशों का मुतालबा है ईरान से कि वो इस मामला को यहीं पर ख़त्म करे। अरब लीग ने भी अपना वर्चुअल हंगामी इजलास तलब किया और 8 मार्च को अरब लीग के इजलास में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें सबसे पहले नंबर पर अरब देशों पर ईरान के होने वाले हमले को कंडम किया गया, उसकी मजम्मत की गई। उसके बाद अरब लीग के इजलास में दूसरा रेजोल्यूशन ये था कि ये अरब ममालिक भी सेल्फ डिफेंस का राइट रखते हैं, इनकी सवर्निटी पर, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है तो ये ईरान को जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये रेजोल्यूशन में नहीं है कि इन देशों को देना चाहिए। उसके बाद ईरान से मुतालबा किया गया कि वो रीजन के इन देशों पर हमला ना करे जिसके साथ उसकी लड़ाई है, उसके साथ ही वो अपनी जंग को महदूद रखे। ये अहम बातें अरब लीग के इजलास में की गई है और ईरान का अभी तक इस पर ऑफिशियल रद्द अमल सामने नहीं आया है। हैरत की जो बात है वो ये कि अरब लीग ने वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास बुलाया, लेकिन इस इजलास ने, इस मीटिंग ने ईरान पर होने वाले अमरीकी हमले की मजम्मत नहीं की, इसको कंडम नहीं किया और न ही अरब लीग के इजलास ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत पर ताज़त पेश की या अफसोस का इजहार किया। ये बातें सामने आ रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी
डेस्क है। मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोज़ बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।